गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और फिर आज हम लोग चलते हैं आज एक नए टॉपिक की ओर और छोटा सा टॉपिक आज लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए। और वो छोटा सा टॉपिक रहा यहां जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। ये क्या है ये टॉपिक? हियर द वर्ड इज बिफोर, ओके। एंड बिफोर यू सी ऑलरेडी that the word before is a preposition, conjunction and adverb. But you have to pay attention especially during using the word because it is used in three forms. Somewhere the word before is used as a preposition, somewhere as a conjunction and somewhere as an adverb. For getting the clear conception and for identifying especially where the word before is used as a preposition, conjunction or adverb, I have written here three sentences. Sentence number A, B and C. I think the sentences would be clearly mentioned and would be clearly visible to you. The first sentence is he, and in the bracket there are three options. He drinks slash mark, has drunk slash mark, will drink slash mark, drank. There are four options and you are suggested to select which option is right or all the options are right. So he drinks a cup of water before lunch, or he has drunk a cup of water before lunch, or he will drink a cup of water before lunch, or he drank a cup of water before lunch. First of all, we will identify the part of speech of the word before here. What is the part of speech here? Before is because here lunch is the name of a meal. This is a noun, and before the noun here the word before is used. So you already know that preposition comes before a noun. So what is this here? This is undoubtedly a preposition. And now he drinks a cup of water before lunch. Yeah, why not? This is his habit. This is the habit of the subject, and under the habit, according to his habit, he drinks a cup of water before lunch. Whenever he takes lunch, just before taking lunch, he drinks a cup of water. So this is undoubtedly right. The first option is right. What about the second option? First option shows the habit of the subject, the general habit, the simple present shows the general habit of the subject. Clear? Number two, he has drunk a cup of water before lunch. He has drunk just before few minutes. Just. He has drunk a cup of water before lunch. He has drunk a cup of water before lunch. Just he has drunk. So immediately in the just it means near present, it means in the past tense, means here present perfect tense will also be used. So he has drunk a cup of water before lunch. Number three, in future he will drink a cup of water before lunch. Yeah, he will drink a cup of water before lunch. This was the future time. And he drank a cup of water before lunch. In the past time, drank here shows. So why not? This sentence may be also mentioned in the past time. So here all the options are right. He drinks a cup of water before lunch is also right. He has drunk a cup of water before lunch is also right. And he will drink in future time a cup of water before lunch, and he drank a cup of water before lunch in the past time. Number two, in the first sentence before is preposition because it has come just before the noun lunch. Number B, sentence number B, he again all the options are same. He drinks or has drunk or will drink or drank a cup of water before. Come on,
a cup of water before here and the sentence ends, there is the full stop here. But in the sentence number A you find that before lunch was mentioned, but in sentence number B there is no noun after the word before. So I think again before is preposition here. Is the word before preposition here? No. Here this before is adverb of time. He drinks a cup of water before, and when you see the word before as an adverb, I would like to write here in this section, adverb, it means previously, okay, showing what? Present time, future time or past time. Previous means former, showing past time. So past time, and for showing past time which tense is used? For showing past time, past tense is used. So before is your adverb. You have to remember that when the word before is used as an adverb, it gives the meaning of previously, and previously shows what? The past time. Okay, the previous day means last day, means yesterday. So previously shows past time, and because of showing the past time, sentence number B will be mentioned. Means which option is right? Drinks is right. Drinks is V5 is used in the simple present tense. So here drinks is wrong. Has drunk, present perfect. Yeah, one thing I would like to mention here, that whenever before is used as an adverb in a sentence, two things, two situations are mentioned here. Past tense 90%. There is the use of the past tense, okay, in that very sentence where the word before is used as an adverb, and there is the use of the present perfect tense. There is the least use. Some grammarians use it, present perfect tense, but most of the grammarians use past perfect tense. This is triple tick and this is single tick. क्या समझ में आई बात? जब भी बिफोर एडवर्ब के रूप में किसी सेंटेंस में हमारा आएगा, तो हम उस सेंटेंस के अंतर्गत जिस टेंस का प्रयोग करेंगे वो हमारा पास्ट टेंस होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये गौर करेंगे. सो पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी बट 10% ही. अगर आपका दोनों ऑप्शन है तो आप पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे. ठीक है, ऐसे दोनों ही ऑप्शन यहां हमारा इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम से स्पेशली मैं बोल रहा हूं, वहां अगर आता है तो पास्ट टेंस. अनडाउटेडली देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड होने की कोई जरूरत नहीं है कि सर तो दोनों बताए थे, पास्ट टेंस भी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी. आप डिक्शनरी में देखेंगे जब इस वर्ड को, स्टैंडर्ड डिक्शनरी में बिफोर एडवर्ब को वहां मेंशन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट टेंस इज यूज्ड एंड sometimes present perfect. Some grammarians also use present perfect tense. That has been mentioned there. So come on here now. Sentence number B. He drinks a cup of water before is wrong. He has drunk a cup of water is right. मैंने कहा है present perfect. So he has drunk a cup of water. He has drunk a cup of water before, and will drink is absolutely wrong because it shows future time, and drank is absolutely right. 3 triple tick. Means most appropriate is this option. Which option? Drank. He drank a cup of water before. Before is adverb here. Number C. He will drink a cup of water before he will take or takes lunch. अब यहां आप देखेंगे इस सेंटेंस में फिर हमारा बिफोर किस रूप में आ रहा है? दिस बिफोर इज किस रूप में? बिफोर फर्स्ट सेंटेंस में प्रीपोजिशन, सेकंड सेंटेंस एडवर्ब. एडवर्ब में ख्याल रखना है जब भी कहीं सेंटेंस में बिफोर हमारा एडवर्ब के रूप में आएगा तो उसका टेंस किस टेंस का होगा? पास्ट इंडेफिनिट मींस पास्ट टेंस का. नंबर सी में आप देखेंगे इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन हो ही गया, एडवर्ब हो ही गया, तो बचा क्या? कंजंक्शन. कंजंक्शन ही है. क्यों? मैंने बताया था
आफ्टर वाले वीडियो में भी कि इस कंजंक्शन कब होता है, जब इसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा। बिफोर कब कंजंक्शन होगा? बिफोर इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन कब? जब बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब होगा, तो वहां बिफोर हमारा कंजंक्शन के रूप में होगा। अब देखेंगे आप यहां, he will drink a cup of water, he is subject first, will is finite verb first, and before again here subject second, will take or takes, this is finite verb, lunch is here noun object. So what will be used? Before is here used as a conjunction, और ख्याल रखेंगे जब कंजंक्शन आएगा तो ये कंजंक्शन फिर हमारा क्लाउज बनाएगा, और ये कैसा क्लाउज हो गया हमारा? एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम, जिसे टाइम क्लाउज भी कहते हैं, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। और टाइम शो करने वाला जब एडवर्ब क्लाउज आएगा और वो भी फ्यूचर से रिलेटेड, तो टाइम क्लाउज याद रखना है। टाइम क्लाउज और कंडीशनल क्लाउज को हम नहीं मेंशन करते हैं शैल और विल का प्रयोग करते हुए। इसका ध्यान रखेंगे आप कि शैल और विल का प्रयोग नहीं किया जाता टाइम क्लाउज में और कंडीशनल क्लाउज में। सो कम ऑन, यहां देख रहे हैं कि विल टेक आ रहा है इस कंडीशनल क्लाउज में, बिफोर ही विल टेक इज रॉन्ग एंड टेक्स इज राइट। मीन्स इन प्लेस ऑफ यूजिंग शैल और विल फॉर शोइंग द टाइम क्लाउज ऑफ फ्यूचर टाइम, what is used? Preferably simple present tense is used. So हमारा text is right. ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस एक मैंने दिया है जिसमें आप देख रहे हैं बिफोर का 3 टाइम्स इस्तेमाल किया गया और 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस में यहां मेंशन किया गया है। बिफोर इज मेंशन फर्स्ट इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, सेकंड बिफोर इज मेंशन इनसाइड an oval, and third before is mentioned inside a cloudy bubble. Before. So I would like to read the sentence. Before he stood before the camera, before he stood before the camera, he washed his face and drank water before. First before is before he stood, before, first before is here, he is subject, stood is finite verb. So just before के बाद आप देख रहे हैं सब्जेक्ट आ रहा है, फाइनाइट वर्ब आ रहा है, तो क्लियर हुआ। अभी मैंने बताया कंजंक्शन होगा तब जब इसके बाद सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होगा। सो दिस इज कंजंक्शन। बिफोर द कैमरा, हियर द कैमरा इज नाउन, इसके बाद कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये कैमरा हमारा नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, अर्थात ये क्या है, दिस बिफोर इज प्रीपोजिशन एंड लास्ट बिफोर इज एडवर्ब। ये रहा एक ही सेंटेंस में, बिफोर ही स्टूड बिफोर द कैमरा, कैमरा के सामने उपस्थित होने के पहले ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपने चेहरे को धोया, एंड ड्रैंक वाटर बिफोर, और पानी पी लिया, पहले ही पानी पी लिया, कैमरा के सामने उपस्थित होने के पहले ही पानी पी लिया। सो कम ऑन नाउ हियर, बिफोर आपने देख लिया, बिफोर प्रीपोजिशन के रूप में भी होगा, कंजंक्शन के रूप में। कंजंक्शन जब होगा तो याद रखना है कि कंजंक्शन में अगर वो आया तो टाइम क्लाउज को हमारा रिप्रेजेंट करता है बिफोर, और टाइम क्लाउज अगर फ्यूचर टाइम से रिलेटेड है तो फ्यूचर टाइम को मेंशन करने के लिए हम उसमें शैल विल का प्रयोग ना करके किसका, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिफोर जब हमारा एडवर्ब के रूप में आएगा तो उसका आपको ख्याल रखना है कि उस एडवर्ब वाले पार्ट में हमें किस टेंस का प्रयोग करना है। सेंटेंस नंबर बी को देखिए, एडवर्ब है तो किस टेंस का आया है हमारा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट, लिस्ट पॉसिबिलिटी 10% ही इसका इस्तेमाल होगा। मोस्ट केसेस में, हर जगह मैक्सिमम प्लेसेस पर आपको किसका, पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। सो कम ऑन नाउ, अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए एरर डिटेक्शन की तरफ। क्योंकि आपने ये देखा बिफोर हमारा प्रीपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी और एडवर्ब भी है। अब उन्हीं से रिलेटेड हमारे ये 9 सेंटेंसेस दिए गए हैं और इंस्ट्रक्शन है हमारा, डिटेक्ट द एरोनियस पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में एरोनियस पार्ट्स को आपको डिटेक्ट करना है, पहचानना है, चुनना है। चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस की ओर। ही विल कम टू द प्लेस ऑफ फंक्शन बिफोर, गौर करेंगे, he will come to the place of function, वो
फंक्शन वाले स्थान पर पहुंच जाएगा बिफोर, पहले ही। क्या हुआ बिफोर? हिंदी करने से इसका एरर पता चल जाएगा? नो। फिर कैसे पता चलेगा? उस बिफोर का पार्ट ऑफ स्पीच जो कि मैंने बताया। बिफोर यदि हमारा प्रीपोजिशन है तो नाउन के पहले आएगा, वर्ब के पहले आएगा तो वर्ब बिफोर फॉर्म में आ जाएगा हमारा। प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रीपोजिशन के रूप में आया उसके बाद प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव किसका होगा? कंजंक्शन के रूप में होगा तो बस सिर्फ टाइम क्लॉज, वो फ्यूचर का ध्यान देना है कि फ्यूचर का अगर है तो उसमें शैल विल का प्रयोग ना करके सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे टाइम क्लॉज में, बिफोर जहां कंजंक्शन के रूप में आ रहा है। और बिफोर जब हमारा एडवर्ब के रूप में आ रहा है तो उसमें तो अनडाउटेडली, चूंकि बिफोर हमारा एडवर्ब के रूप में क्या प्रीवियसली जो पास्ट टाइम को शो करता है और उसकी वजह से पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। तो बिफोर हमारा इस सेंटेंस में है क्या? बिफोर इज एडवर्ब, चूंकि इसके बाद कोई नाउन है ही नहीं कि वो प्रीपोजिशन होगा और कंजंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद कोई सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है नहीं, लास्ट वर्ड है हमारा उस सेंटेंस का, तो वो हमारा एडवर्ब हुआ। और जब एडवर्ब हो गया तो आपने अभी देखा कि पास्ट टाइम को शो करता है, तो पास्ट टाइम को शो करेगा तो हमारा किस टेंस में होगा प्रयुक्त? पास्ट टेंस। तो क्या ही विल कम हमारा पास्ट टेंस को शो कर रहा है? टेल मी वेदर द फर्स्ट पार्ट ए shows he will come shows the past tense or the future tense? Undoubtedly future tense. Future tense here is shown. So which part is erroneous? Part A is erroneous. And what will be the answer? Here in the answer zone I would like to write here the answer. First A, what is wrong? Will come is wrong. Will come is wrong, and in place of will come what will be used? Came will be used, because there before is adverb came, V2. Number 2, he will come to the place of function 30 minutes before. Again here before. What is this here again? Before. Do you find any noun after before? No. So before is not a preposition. Do you find any subject and finite verb after before? No. Then before is again here what? Adverb, and adverb showing past time. So again the part A will be wrong, because here part A, he will come to. So again part A is wrong. So part A is wrong. Will come is wrong. Will come is wrong. What will be right? Came will be right. He came to the place of function 30 minutes before. Number 3, he will come to the place of function before 30 minutes. He will come to the place of function before 30 minutes. What do you find here? What is the part of speech of the word before? Before has been used here just before the noun 30 minutes. 30 is here numeral adjective determiner, 30 is determiner, and minutes is noun. So before is coming here what? Before noun. So before is a preposition, और जब preposition है before 30 minutes तो इसमें कहीं टेंस की कोई बाध्यता नहीं है। टेंस की बाध्यता हमारे दो ही सेंस में है। एक जब कंजंक्शन है तो हमारे फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए शैल विल के स्थान पे हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। जब हमारा बिफोर एडवर्ब होगा तो उस पार्ट में, उस सेंटेंस में हम किस टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट टेंस का। यहां तो हमारा प्रीपोजिशन है। सो ही विल कम, फ्यूचर का भी हमारा राइट होगा। ही विल कम टू द प्लेस ऑफ फंक्शन, वो फंक्शन वाले स्थल पर वो पहुंच जाएगा, वो आ जाएगा बिफोर 30 मिनट्स। जो टाइम दिया गया उससे 30 मिनट पहले ही वो पहुंच जाएगा। So all the parts are wrong. All the parts are right. Part A is also right. Part B is also right. Part C is also right. So what is the answer? Part D. No error. Third sentence, part D. The answer is part D. No error. And now come on to the sentence number 4. He will come to the place of function before 3 p.m. Here it was 30 minutes. Come on, in the third sentence before 30 minutes, but in the fourth sentence before 3 p.m. What do you think here? What is the role of the word here? Before. 3 p.m. is again, this is noun, 3 p.m. and before noun here the arrival of before shows what? That again this is preposition. So he will come to the place of function. Function वाले स्थान पर वो आ जाएगा
कब आ जाएगा? तो 3 PM P and M, P dot M dot stands for post meridian, AM stands for ante meridian. Meridian time is the time when the sun is just above your head, that is the meridian time, and ante means just before the meridian time, and post meridian means just after the meridian time. So now come on, he will come to the place of function before 3 PM, and here you find that before is preposition, so will come is also right. वो आ जाएगा फंक्शन वाले स्थान पर 3 बजे से पहले ही वो आ जाएगा. A is also right, B is also right, C is also right. So which part is the answer? Number 4 again, D. No error, D. To the 5th sentence we would like to proceed. He will come to the place of function 3 PM before. Yeah. Here before 3 PM in sentence number 4, before 3 PM, and in the sentence number 5, 3 PM before. Most important, गौर करेंगे, यहां हमारा 30 मिनट्स बिफोर आया था. सेकेंड सेंटेंस में आप देख रहे हैं 30 मिनट्स के बाद बिफोर, और थर्ड में क्या आ रहा है? बिफोर 30 मिनट्स. मींस 30 मिनट्स के बाद भी आ रहा है बिफोर तो चलेगा, बस क्या हो जा रहा है? एडवर्ब हो जा रहा है वो बिफोर. लेकिन और थर्ड सेंटेंस में बिफोर 30 मिनट्स आया, 30 मिनट्स के पहले आ गया तो प्रीपोजिशन हो गया. तो उसी तरह से बिफोर 3 PM है तो हमारा प्रीपोजिशन, और 3 PM के बाद अगर बिफोर है तो हमारा बिफोर एडवर्ब. नो सॉरी, दिस पार्ट इज रॉन्ग हियर, सी इज रॉन्ग हियर, पार्ट डी वाज नो एरर, राइट. नंबर 5, सी इज रॉन्ग. व्हाई? अब चलिए आपको यह जानना होगा, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम को जानना होगा. वेयर इज द स्पेस? देयर इज नो स्पेस हियर. आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये बिफोर यहां मैं लिखना चाहूंगा, इस एरिया में स्पेस की कमी हो रही है. बिफोर हमारा है क्या? आप देख रहे हैं पीरियड, ये क्या हमारा 3 PM इज व्हाट? देयर आर 2 टाइम्स. Point of time 3 PM, Sunday, January. These words come under point of time, exact time, definite time. But period of time 3 hours, 3 minutes, 3 days, 3 months, 3 years. These are called what? Period of time. So before adverb will be used, गौर करेंगे, before adverb will be used only after the period of time, not after the point of time. Did you listen to my words? I would like to repeat the word that before adverb, देख रहे हैं आप यहां सेंटेंस नंबर 4 में बिफोर 3 PM राइट, लेकिन 3 PM बिफोर इज रॉन्ग. सेकेंड सेंटेंस में 30 मिनट्स बिफोर इज राइट, थर्ड सेंटेंस में बिफोर 30 मिनट्स इज राइट, फोर्थ सेंटेंस बिफोर 3 PM इज राइट, बट इन फिफ्थ सेंटेंस 3 PM बिफोर इज रॉन्ग. क्या हुआ? ये कंक्लूजन आया कि बिफोर एडवर्ब इज यूज्ड, बिफोर एडवर्ब इज यूज्ड after period of time. 30 minutes is period of time, but 3 PM is point of time. Before adverb के रूप में आएगा तो किसके बाद? पीरियड ऑफ टाइम के बाद. यही मैं यहां नोट कर रहा हूं, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और point of time, point of time plus before as an what? Adverb. मैंने दोनों ऑप्शन यहां लिखा, इसमें एक गलत और एक सही. कौन सही? तो पीरियड ऑफ टाइम इज राइट एंड पॉइंट ऑफ टाइम इज रॉन्ग. पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारा बिफोर एडवर्ब नहीं आएगा. किसके बाद? पीरियड ऑफ टाइम. 2 days बिफोर, ना कि संडे बिफोर. ओके, 2 minutes बिफोर, ही वेंट 2 minutes बिफोर, ना कि ही वेंट 2 PM बिफोर. नो, ही वेंट बिफोर 2 PM.
ये राइट है, बिफोर 2 PM में बिफोर हमारा प्रीपोजिशन हो गया, लेकिन 2 PM बिफोर, दिस इज रॉन्ग। बिफोर एडवर्ब के रूप में सिर्फ और सिर्फ किसके बाद आएगा? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के बाद बिफोर एडवर्ब के रूप में आएगा, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम 2 PM, ना कि संडे, ना कि जनवरी, ना कि 2021, ये सब नहीं। क्लियर? तो चलिए अब पार्ट हमारा 5, सेंटेंस नंबर 5 का हमारा, विच पार्ट इज एरोनियस? 3 PM बिफोर इज एरोनियस। ये इसकी जगह क्या हो जाएगा हमारा? बिफोर 3 PM इज राइट, क्योंकि बिफोर हमारा एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त है और वो भी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आ रहा है, सो रॉन्ग। ये हमारा 5 का कौन सा पार्ट इज रॉन्ग? सी इज रॉन्ग। 3 PM बिफोर, 3 PM before is wrong and right is before 3 PM. 3 PM. Come on now to the 6th sentence. 6th sentence, he will come to the place of function. आप देख रहे हैं, He will come to the place of function, वो फंक्शन वाले स्थान पर वो आ जाएगा, before it will be 3 PM, 3 बजने के पहले ही वो आ जाएगा, it will be 3 PM। और आप देख रहे हैं कहां बिफोर का रोल क्या है हमारा? यहां बिफोर हमारा किस रूप में आ रहा है? ये बिफोर के बाद देख रहे हैं इट आ रहा है, विल बी आ रहा है हमारा फाइनाइट वर्ब, और इट हमारा सब्जेक्ट आ गया, तो ये क्या है? सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का अराइवल आ रहा है हमारा, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का अराइवल, अर्थात क्या है? बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, तो क्या हो गया? कंजंक्शन, हियर कंजंक्शन। अब ये देखिए कि ये टाइम क्लाउज को शो कर रहा है, मैंने बताया था अभी कि टाइम क्लाउज को जब हमारा शो करता है तो शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे टाइम क्लाउज में, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का। तो क्या यहां ये राइट है? ही विल कम टू द प्लेस ऑफ फंक्शन, वो फंक्शन वाले स्थान पर, कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंच जाएगा, बिफोर इट विल बी 3 PM, 3 बजने के पहले ही पहुंच जाएगा। सॉरी, यहां विल बी इज रॉन्ग, उसकी जगह क्या हो जाएगा? इज का प्रयोग होगा, बिफोर इट इज 3 PM, बिफोर इट इज 3 PM, 3 बजने के पहले। विल बी का प्रयोग रॉन्ग हो जाएगा, विल बी की जगह हमारा इज हो जाएगा। तो विच पार्ट इज रॉन्ग हियर? पार्ट सी इज रॉन्ग। 6th सेंटेंस पार्ट सी, विल बी इज रॉन्ग, विल बी इज रॉन्ग एंड इज राइट, विल बी इज रॉन्ग। नंबर 7 की ओर चलें। मैन बिकम्स सक्सेसफुल, मनुष्य सफल हो जाएगा। मैन बिकम्स सक्सेसफुल किस काम में सफल हो जाएगा? इन लिविंग ऑन द मार्स, मंगल पर रहने में सफल हो जाएगा मनुष्य। मैन बिकम्स सक्सेसफुल इन लिविंग ऑन द मार्स बिफोर 2040 एंड इट इज हियर व्हाट? 2021। अभी तो 2021 चल रहा है, 2040 के पहले ही वो एकदम मंगल ग्रह पर रहने में सफल हो जाएगा। मैन बिकम सक्सेसफुल, मनुष्य सफल हो जाएगा। आप देख रहे हैं फ्यूचर टाइम की बात आ रही है, 2040 नहीं है अभी तो 2021 है, और 2040 अभी फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। फिर भी हम यहां शैल विल का प्रयोग ना करके सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कर रहे हैं, बिकॉज फ्यूचर टाइम को अनडाउटेडली सिंपल प्रेजेंट में मेंशन किया जाता है। अभी आपने देखा कंडीशनल क्लाउज वाले में कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो मैन बिकम सक्सेसफुल, मैन सफल हो जाएगा, मनुष्य सफल हो जाएगा। इन लिविंग, रहने में सफल हो जाएगा। ऑन द मार्स, मंगल ग्रह पे, बिफोर 2040, 2040 के पहले। और बिफोर हमारा किस रूप में आ रहा है यहां? बिफोर इज हियर यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन, क्योंकि 2040 इज द नेम ऑफ अ ईयर। नेम ऑफ अ ईयर, ये वर्ष का एक नाम आ रहा है, दिस इज नाउन। अब यहां हमारा इसमें कौन पार्ट सा हमारा रॉन्ग है? मैन बिकम सक्सेसफुल, सिंपल प्रेजेंट फॉर शोइंग फ्यूचर टाइम इज राइट। इन लिविंग, इन प्रीपोजिशन के बाद हमारा लिविंग जीजन आ ही रहा है। ऑन द इज राइट, मार्स हमारा हेवनली बॉडी है, इसलिए उसके पहले द आ ही रहा है, करेक्ट है। बिफोर 2040, 2040 के पहले, सी इज ऑल्सो राइट। सो विच पार्ट इज राइट? विच पार्ट इज द आंसर? पार्ट डी, नंबर 7 डी, नो एरर। Number 8, the second last. Man becomes successful in living on the Mars 2040 before.
बताइए, सेम वही चीज है ना जो 7 में है। फर्क कितना ही होगा कि बिफोर 2040 था यहां, और नंबर 8 में 2040 बिफोर आ रहा है। अर्थात बिफोर अब क्या है, बिफोर के बाद कोई नाउन तो है नहीं, तो प्रीपोजिशन हुआ नहीं, कंजंक्शन होगा नहीं, क्योंकि उसके बाद कोई सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है नहीं। अर्थात बिफोर क्या हमारा एडवर्ब है, और जब एडवर्ब है तो अभी मैंने बताया कि ये पॉइंट ऑफ टाइम के बाद नहीं आता है, ये एडवर्ब बिफोर एडवर्ब किसके पहले आता है, पीरियड ऑफ टाइम। जबकि 2040 हमारा क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, वर्ष का नाम। और ये एग्जैक्ट टाइम क्या शो कर रहा है हमारा, ये एग्जैक्ट टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। इसलिए विच पार्ट इज रॉन्ग हियर इन सेंटेंस नंबर 8, पार्ट सी इज रॉन्ग। 8 का हमारा सी इज रॉन्ग, और करेक्ट क्या होगा, मार्च 2040 बिफोर की जगह मार्च बिफोर 2040, मार्च 2040 बिफोर is wrong, and its right is March before 2040, ये राइट हो जाएगा। नंबर 9 की ओर मैं चलता हूं। लास्ट सेंटेंस बिल्कुल सेम 7, 8, 9 को मैंने बिल्कुल कंफ्यूजिंग क्रिएट किया मैंने, ताकि आपका बिल्कुल सेम सेंटेंस मिलता जुलता हुआ मिले। नंबर 9 को देखिए कितना एकदम हाउ स्ट्रेंज द सेंटेंस नंबर 9 इज। वही सारे वर्ड्स हैं, सिर्फ एक वर्ड इंक्लूड कर दिया गया एक्स्ट्रा। चलिए देखते हैं नंबर 9 को। मैन बिकम्स सक्सेसफुल इन लिविंग ऑन द मार्स की जगह क्या कर दिया मैंने, क्या, मैन बिकम्स सक्सेसफुल, मनुष्य सफल हो जाएगा, इन लिविंग ऑन द मार्स, ऑन द केप, उस केप पर, उस टापू पर, उस अंतरीप पर रहने में सफल हो जाएगा। 2040 ईयर्स बिफोर, 2040 के बाद फिर आया बिफोर आ रहा है। अर्थात बिफोर किस रूप में आ रहा है, इस बिफोर के बाद हमारा कोई नाउन है नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है, बिफोर के बाद कोई सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है नहीं है, फिर बिफोर हमारा अकेला आ रहा है यहां। अर्थात किस रूप में, ये एडवर्ब के रूप में। और जब एडवर्ब है तो अभी बताया गया था कि पीरियड ऑफ टाइम के पहले हमारा, पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमारा आता है बिफोर एडवर्ब, जबकि 2040 तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी वजह से ना यहां सी रॉन्ग हुआ, तो फिर हमारा सी रॉन्ग हो जाएगा। नो, गौर करेंगे, सेंटेंस नंबर 8 में था मार्च 2040 बिफोर 2040 ईयर के बाद ठीक बिफोर था, जबकि 9 में आप देख रहे हैं 2040 के बाद ईयर्स वर्ड है। ये हमारा अब ईयर नहीं शो कर रहा है, ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव अब हो गया जो यस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। हाउ मेनी ईयर्स, 2 ईयर्स बिफोर, 3 ईयर्स बिफोर, 200 ईयर्स बिफोर, 200 साल पहले। नो, 2040 ईयर्स बिफोर, 2040 साल पहले। गौर किया आपने, हियर 2040 इज नॉट नाउन, इन दिस सेंटेंस 2040 इज नाउन, बट इन दिस सेंटेंस 2040 इज नॉट नाउन, ईयर्स इज नाउन, 2040 इज डिटरमिनर। ये न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया 2040 साल पहले। अब जब 2040 साल पहले सी हमारा राइट हो गया, डायरेक्ट हमारा वो पॉइंट ऑफ टाइम के बाद नहीं आ रहा है, वो 2040 ईयर्स आ रहा है हमारा। फिर ये क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया। जैसे यहां पर मैंने लिखा था, कहां गया नंबर 2, 30 मिनट्स बिफोर, 30 मिनट्स बिफोर, 30 मिनट पहले। उसी तरह से कितने दिन पहले, तो 2040 साल पहले। अब जब बिफोर हमारा यहां सी करेक्ट है, एडवर्ब है हमारा, और जब एडवर्ब है पास्ट को शो कर रहा है, तो इसका मैंने बताया था कि जब ये हमारा एडवर्ब रहेगा पास्ट को शो करेगा, पास्ट टाइम, तो किस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में। तो क्या ये पास्ट टेंस में है 9, मैन बिकम्स है ना, एडवर्ब है हमारा पास्ट का, तो मैन बिकम्स होगा, या मैन बिकेम सक्सेसफुल। राइट, मैन बिकेम सक्सेसफुल, मनुष्य सफल हो गया। किस काम में सफल हो गया, इन लिविंग ऑन द केप, उस केप पर, उस टापू पर, उस अंतरीप पर रहने में सफल हो गया। कितने दिन पहले से वहां उस टापू पर रहने में सफल हो गया भाई, तो 2040 वर्ष पहले ही से। अब आपका विच पार्ट इज द आंसर इन नंबर 9, 9 इज ए, एंड हियर द आंसर इज ए। और ए में हमारा क्या हो जाएगा, बिकम्स इज रॉन्ग,
becomes is wrong and what will be right? became will be right. तो ये रहा आपका आंसर जोन और ये रहे आपके क्वेश्चंस और ये रहा बिफोर पर आपका डिस्कशन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें। आपके लिए मैं बोर्ड को मैंने खाली कर दिया है, मैं साइड हो चुका हूं। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर चलता हूं मैं आपको अब इसी शब्द के साथ कि आज का डिस्कशन हमारा यहीं ओवर होता है और फिर आपके कमेंट्स का इंतजार करते हुए मैं आगे के अगले वीडियो क्लिप की और फिर मैं नाउन की तरफ जो टॉपिक चल रहा था मैं वहां ले चलूंगा अगले टॉपिक में। बीच बीच में टॉपिक थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं ताकि आप मोनोटोनस फील ना कर सकें। तो ठीक है, चलता हूं मैं, अब आपकी इजाजत है। दैट्स ऑल, थैंक यू।